क्वेश्चन arises is how were you so consistent? क्या था तुम्हारा वो ड्राइविंग फोर्स की that kept you consistent कि तुम्हें डेली 5 घंटे देने? बिकॉज एज यू सेड दैट कुछ कुछ दिन होते हैं कि तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, कि 5 घंटे तुम कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन हुआ या दो ही क्वेश्चन हुए. सो व्हाट वाज योर माइंड स्पेस दैट मेड यू फोकस कि तुम्हें हर दिन काम करना ही, हर दिन तुम्हें कोडिंग करनी ही है, सो दैट यू वर कंसिस्टेंट थ्रू आउट? पहले तो होता है कि लाइक ऑप्शन तो है नहीं, प्लेसमेंट के लिए ये तो चाहिए ही, लाइक इसका ऑल्टरनेटिव तो कोई है नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स तो करना ही है. एंड देन जब जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर अब यही ऑप्शन बचता है कि इसमें कुछ करके कर सकते हैं. अगर डिमोटिवेट हो तो जेई याद कर लो कि जेई कैसे खराब हुआ था, एंड देन इज ऑन योर. करिए, अपने बारे में थोड़ा बताओ, मतलब स्टार्ट यहीं से करते हैं, थोड़ा तुम्हारे बारे में जानते हैं. टेल अस अबाउट योरसेल्फ. So talking about academic, I'm pursuing BTech from Krishna Engineering College, currently in my third year, and I have department ranked second in my second year with an aggregate of 9.14. And talking about technical skills, so I'm more inclined towards data structures and algorithms, and currently focusing on web development. You have covered a lot of things, like academics में भी तुम्हारे 9 पॉइंटर बने हुए हैं, तुमने फिर लीड कोड पे, Geek for Geeks पे भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. तो यार आई वांट टू नो अबाउट कि ये तुम्हारा कोडिंग जर्नी क्या रहा, कैसे स्टार्ट किया तुमने, आखिर ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? I started last year during the pandemic only. So for the first 2 months, I decided to be consistent. Like I tried solving 5 to 6 questions daily. But ऐसा होता नहीं था. Like कई बार होता है कि like एक भी question नहीं हो रहा, but कभी कभार good number of questions were solved. So I was consistent for like 2 months. After that, I started solving medium question. Before that, I was more on easy questions only. And then I started doing medium question, and I explored many other things. Like I tried CP, I tried development, and then whatever interests me, I'm now doing that. And how did you learn to code? Like So I had computer science in my school. at what standard So I knew did you C++, learn? 11th, 12th. Okay, 11th. Okay, So 11th, fine. I knew about it before, but that was like very basic, like Mhm. Fibonacci series factorial or that program. But then Acha. in the third year only, I learned other data structures and all. So, what were the resources that you used for the entire process? Like consultation ली, कोई coaching ली, या कोई online course लिया, या YouTube से पढ़ा, Udemy से, बहुत सारे resources हैं अभी के time में available. But तुम्हारे जो particular selective picks थे वो क्या थे? The YouTube and many like free courses which are available, I did that, and YouTube. There are many people like Love Bubbles, SD Sheet I followed. Initially, I did coding club for 1 month. Okay. So, what is that coding club? It is a online course, something? So yeah, coding club, they have a course called Coding Mafia, where it's like 1 month course where you have to solve certain amount of questions daily, and they deliver the video lectures on that. So basically, that helped in building the consistency, because in the initial phase you feel very demotivated and you feel like quitting every other day. So they send the list for top student daily. So to be in that list, we solve some questions daily. They were the consistency got started. So that particular initiative gave you a boost to be competitive and be in the top list. So you kept on solving questions. So फिर तो इंटरेस्ट आ गया तो फिर होते रहा. तो एक क्वेश्चन आता है यार कि तुमने अभी तक like as of now what all DSA topics you have covered, and मतलब according to you what do you think are important DSA concepts that students should know? से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उनके इंटरव्यूज में उनको हेल्प हो. तो ऐसे तुम्हारे कुछ मतलब होगा ना जिसपे तुमने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होगा सीखने में, या थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस किए होंगे? Like I had time, so I solved some 50 questions on every topic. Like I gave 1 week to linked list. In that 1 week, I solved some 50 to 60 questions of linked list. Then I transferred to checks and queues. Then I did recursion. Then I did DB. For the DB, I followed one playlist, and I've done some 50 to 60 questions in that. Then after that, I've done trees. Binary search trees is left, and now I'm on the graphs. What do you think? Like, what all the topics, like in all these, are very important that one should definitely have? अगर उनको सारी चीजें कवर नहीं करनी, लेकिन होता है ना कि कुछ एकदम bare minimum है जिसको करना ही पड़ेगा. So what do you think is that are those topics that everyone should do? Whatever the tests I have given, I have seen the question from dynamic programming also. So you think that is something that everyone should at least give time and solve more questions? But उससे पहले बाकी डेटा स्ट्रक्चर करना बेटर है. Like मैंने पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग करने का ट्राई किया था, but then वो हुआ नहीं. But after I did recursion trees, so dynamic programming तब easy थोड़ा होने लगा. The more number of questions that you solve और तुम्हारे basics जितने strong होते हैं, तो फिर तुम्हारे से थोड़े से advanced topics भी अच्छे से solve हो जाते हैं.
हैं। सो एक और क्वेश्चन आता है यार, एक बहुत ज्यादा मतलब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए कोड करने के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, बट आई सी दैट यू हैव चोज इन पर्टिकुलर GFG एंड लीड कोड। सो हाउ डिड यू सेलेक्ट दैट कि मुझे GFG एंड लीड कोड पे क्वेश्चन करना, मतलब कुछ तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि इन पे ही करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, क्या तुम्हारा इस बारे में? पहले सबसे सुना था कि GFG कर लो फिर तो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू निकल जाएगा, एंड लिंक्डइन पे जितना भी देखो सब बच्चे लीड कोड कर रहे हैं, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग बोथ ऑफ दीज। आई ट्राइड इंटरव्यू bit also, but it has a limited number of questions, so it's better to do that before the interview. For practice, it's better to do GFG and lead code. Tried code forces also. I solved 100+ questions there, but then data structure is something that is most fun. So what do you think, like अगर कोई beginner student है तो what should be his approach in selecting a platform? क्या select करना चाहिए? अब तुम्हारे पास मतलब 3-4 प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है ना, कि तुमने GFG पे भी किए, लीड कोड पे भी किए, कोड फोर्सेस पे भी किए, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट विल यू सजेस्ट कि कहाँ पर जाओ और वहां से मतलब स्टार्ट करो? Lead code is not beginner friendly. Like a very beginner can't do that. It requires certain knowledge. Then you can start with GFG. It has basic, cool, easy, medium, hard, different levels. So it's better to first learn a language. Then you can try STL, because these platforms require the STL knowledge, and then data structure, and then parallelly you can solve question on GFG. And then after solving certain number of questions on GFG, you can start lead code. So that your confidence will also not get big. तो एक जो रहेगा यार कि हाउ मच टाइम यू यूज टू स्पेंड ऑन अ डेली बेसिस, मतलब जब तुम अपना ये पूरा प्रोसेस में थे कि मुझे सीखना है, मुझे काफी क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या चलता था? तुम मतलब कितना टाइम एलोकेट करते थे कि आज हर डे मुझे इतना टाइम देना है? व्हाट वाज दैट शेड्यूल तुम्हारा? इनिशियली आई गेव 5 to 6 hours, जब क्योंकि होते ही नहीं थे तब, तो फिर उसमें आउटपुट बहुत कम निकलता था 5 to 6 hours में भी। बट देन इन दिसंबर आई यूज्ड टू बी लाइक डेडिकेट few hours to data structure, then few to development. This is how I divided the amount of hours that I give. Basically, I do it like in the afternoon, then in evening. So like on an average you used to spend 5 to 6 hours daily. Yes. And how long did you spend this amount of hours? कितना time duration कितना रहा? I'm doing from last year May. So about 1 year. Yes. So in 1 year, by giving 5 to 6 hours on a daily basis, मतलब या फिर बीच में थोड़ा on and off तो हुआ होगा? Yes sir. पर फिर किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है, किसी दिन कम भी हो जाता है। Okay. तो on an average you did spend for 5 to 6 hours for throughout the period of 10 to 12 months, and तब जा करके अब तुम इतने confident हो गए हो कि you are able to solve multiple questions and झंडे गाड़ रखे हैं basically हर जगह। यार एक क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्योंकि तुमने ये over a period of time, मतलब consistently तुमने पूरे 10 months के लिए किया है, ठीक है? Question arises is how were you so consistent? क्या था तुम्हारा वो driving force की that kept you consistent कि तुम्हें डेली 5 घंटे देने? बिकॉज एज यू सेड दैट कुछ दिन होते हैं कि तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, कि 5 घंटे तुम कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन हुआ या 2 ही क्वेश्चन हुए। सो व्हाट वाज योर माइंड स्पेस दैट मेड यू फोकस कि तुम्हें हर दिन काम करना ही, हर दिन तुम्हें कोडिंग करनी ही है, सो दैट यू वर कंसिस्टेंट थ्रू आउट? पहले तो होता है कि लाइक ऑप्शन तो है नहीं, प्लेसमेंट के लिए ये तो चाहिए ही, लाइक इसका ऑल्टरनेटिव तो कोई है नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स तो करना ही है। एंड देन जब जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर अब यही ऑप्शन बचता है कि इसमें कुछ करके कर सकते हैं। अगर डिमोटिवेट हो तो जेई याद कर लो कि जेई कैसे खराब हुआ था, एंड देन दिस इज ओनली ऑप्शन। So basically looking back at the past और फिर उसके बाद कि यार अब करना ही करना है, there is no backup option, तो फिर उसको ले करके करते हुए कि भाई अब करना ही करना है, हर दिन डालेंगे एफर्ट और इसमें करेंगे अच्छा। That was your motivation, ताकि तुम जो हर दिन you were consistent। मतलब बीच में ऐसा नहीं लगा तुम्हें कि छोड़ देते हैं यार, इतना कौन मेहनत करे, क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे? यस सर, फिर यूट्यूब पे कई बार मोटिवेशनल वीडियोस या फिर लैपटॉप पे मोटिवेशनल पेपर लग रहे हैं, लाइक डिड some funny things also, so but over a period of time हो ही गया। Obviously जब अगर तुम over a period of time बहुत dedicated और discipline के साथ करते हो तो you get across the जितने भी तुम्हारे मन में ऐसे थोड़े negative thoughts आते हैं उससे निकल जाते हो। What were your mistakes and what you could have done better throughout this period? मतलब जब तुमने 8-9 महीने लगाए हैं तो obviously तुम अब जब तुम देखती होगी अपने past 1 year को, तुम्हें लगता होगा यार कि मैंने ये चीज ढंग से की होती तो शायद मेरी जर्नी थोड़ी और स्मूथ हो जाती, या मेरा लर्निंग कर्व थोड़ा और
बेटर हो सकता था। तो कैन यू पॉइंट आउट सम ऑफ योर मिस्टेक्स, अगर जो तुम्हें लगा कि अब अगर तुम किसी को सजेस्ट करो तो वो बेटर करे अपने जूनियर्स वगैरह को, तो वो क्या बोलोगे I could have started early. I could have started early और like initial phase में ये आता था थॉट कि like कॉलेज में तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी नहीं, तो फिर 1.5 लेक्चर इतना करने का फायदा होगा कहाँ, क्योंकि कॉलेज में तो ये पूछेंगे नहीं इतना। बट देन LinkedIn पे when I made account and then I used to see like off campus तो बहुत कुछ है, and that's how I started. और one mistake could be I used to give up on a question very quickly. Like I spent some 5 to 6 minutes on a question and then अगर वो नहीं हो रहा तो मैं कई बार सॉल्यूशन देख के कर लेती थी। इनिशियली तो सॉल्यूशन भी समझने में टाइम लगता है, बेटर ये होता है कि क्वेश्चन पे एटलीस्ट हाफ एन आवर यू कैन डेडिकेट एंड देन यू कैन मूव टू सॉल्यूशन, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी और जल्दी एनहांस हुई। तो यू थिंक कि मतलब दो चीजें तुम्हारी मिस्टेक हुई कि एक तो तुम्हें थोड़ा पहले करना चाहिए था, यू स्टार्टेड इन थर्ड ईयर राइट, तो इफ यू कुड हैव स्टार्टेड डूइंग दिस इन द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो तुम्हारा अभी मतलब अलग ही लेवल पे होता। और दूसरा थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस होल्ड करके हर दिन करना पड़ता है ताकि लर्निंग थोड़ी अच्छी रहे, वरना नहीं हो पाता है। वन पीस ऑफ एडवाइस जो तुम अपने जूनियर्स को देना चाहो कि यार ये करना, ये करो ही करो, मतलब दिस इज अ मस्ट एडवाइस कि तुमको करना ही चाहिए। अगर कोई पूछे तो मैं ये कहती हूँ लाइक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर लो, देन SQL लर्न कर लो एंड देन चूज एनी प्लेटफॉर्म। नाउ HackerRank is also very popular and then you can start solving questions on them, and the most important is you have to be consistent and you have to be patient। Obviously बहुत जल्दी नहीं दिखेगा। Obviously अब तुमने मतलब जब 500 क्वेश्चंस प्लस कर रखे हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुमने डाला है इस चीज को मास्टर करने में। और अभी भी इनफैक्ट जब तुम बोल रहे हो कि यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स डूइंग क्वेश्चंस, अभी भी तुमने मतलब छोड़ा नहीं है, यू आर स्टिल इन टच, अभी भी चल रहा है। तो हाँ ऑब्वियसली यू आर ट्रू कि मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक हमें कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, तो ही हम मतलब कोई अगर स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है तो उसको लगेगा मतलब एज यू से कि 1 ईयर ऑफ टाइम लगता है, एंड तब जा करके हम एक पर्टिकुलर इस चीज में थोड़ा कुछ देख पाएंगे, हमसे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। करेक्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब सबको इतना टाइम लगेगा या फिर तुम इसको और बेटर तरीके से भी कर सकती थी? ये सब बेटर भी हो सकता है, कम टाइम भी लग सकता है। इट्स जस्ट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इजी क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन इजी क्वेश्चन। वंस यू आर कंफर्टेबल यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग मीडियम एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, सो लाइक व्हाट इज योर थॉट कि कितने इजी करने चाहिए और फिर मूव कर जाना चाहिए मीडियम पे फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक? फॉर एग्जांपल इफ यू पिक अ टॉपिक एज लिंक लिस्ट, ओके, सो व्हाट वुड बी योर अप्रोच, लाइक कितने इजी क्वेश्चंस करें फिर मूव कर जाए मीडियम पे और फिर मूव कर जाए हार्ड पे? लिंक लिस्ट में तो पहले सिंटैक्स से फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पॉइंटर से इनिशियली तो डर लगता है, देन सिंटैक्स से वंस यू आर फैमिलियर, नाउ लिंक लिस्ट में जो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं वो एल्गोरिथम बेस्ड है, ट्रू एंड पास्ट पॉइंटर्स एंड ऑल। तो फिर लिंक लिस्ट में तो इजी क्वेश्चन लाइक इफ यू डू सम 7 to 8 क्वेश्चन देन यू शुड मूव टू एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज़ क्वेश्चंस तो वो एल्गोरिथम बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे तुम्हारे मतलब फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव सम अ प्लान, लाइक लिंक लिस्ट के लिए तुम्हारा अगर ये प्लान है तो तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए एक अलग प्लान होगा उस पिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पिक करने के लिए। तो बेसिकली वो तुमने खुद से फिगर आउट कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मुझे कितने करने पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी एंड फिर मुझे मूव करना है नेक्स्ट लेवल पे। Not like a fixed number of questions, so initially I was just getting to be grasp over the topic, and now there are many sheets available on the internet, so I try to follow them now. और फिर आगे फ्यूचर प्लान्स तुम्हारे क्या है? मतलब अभी तुमने नागैरो से मतलब ऑफ कैंपस ले लिया है, करेक्ट? और ये ऑफ कैंपस का कैसे रहा, तुम बता सकती हो थोड़ा कि हाउ डिड यू अप्लाई? The first round was the technical aptitude, technical objective and general aptitude round. It has some 50 questions. Like then the second round was coding test, in which there were 5 questions, and then there was technical interview where they were judging on the basis of your technical knowledge of the subjects like object oriented programming, database management, and certain coding questions. I was the questions based on dynamic programming also, and then after that it was the HR round. Basic जो होते हैं हर जगह का यही स्ट्रक्चर होता है। तो what are your future plans? अब क्या करने का सोचा है आगे? और I'm
trying to do some internship. Okay, as of now you are planning for some internships. और अभी अब किस चीज पे फोकस है तुम्हारा, मतलब डेवलपमेंट साइड पे, प्रोजेक्ट्स वगैरह करने पे, या और डेटा The स्ट्रक्चर्स projects and पे? data structure. दोनों पर ही मतलब इक्वल 50-50 करके तुम्हें टाइम स्पेंड करने का है? ठीक है, Yes. ओके, नाइस। 2022 में नेक्स्ट ईयर यू विल बी ग्रेजुएटिंग। Yes. ओके, Yes. सो नाइस, ऑल द बेस्ट। काफी सारा काम किया है तुमने, ठीक है, और ऐसे ही करते रहो एंड कीप पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, ताकि और भी लोग मतलब ऐसे देख के तुमसे इंस्पायर हो। एंड ओके, सो दैट्स ऑल।